Good morning, everyone. So, as a part of our current affairs theme program, so today we are going to talk about one important article that is special packages. So, what are basically special packages? You would often hear about the term special packages during the election period. Every year, in any some state or on a after every 5 year interval, we have Lok Sabha election and all. So during every election process, you will hear about the special packages. So special packages are basically the financial assistance. It is basically the financial assistance that is provided to different state governments by the central government to overcome their socio-economic development of the people. Okay, so basically it is not an you can say an election promise, but it is provided on a voluntary basis as well as on a compulsory basis. Okay, so special packages are basically it is basically a financial assistance that is provided to the state for socio-economic development. So there are certain constitutional measures as well that makes it obligatory for the central government to provide special packages to some states. For example, you people might be aware in the Constitution, Article 371A to 371H, okay, which basically talks about some special, you can say special treatment to some states that needs to be provided. So under that special treatment, there it also talks about development of some special region. Okay, some special region. So for that development, we require special packages. But you will often hear during election period some other states as well demanding special package from the central government. Okay, for example, during this year's Lok Sabha election, the government was that has been formed. It wasn't in majority, so as a result, it took support from Bihar and Andhra Pradesh. BR, the Chief Minister of BR and the Chief Minister of Andhra Pradesh, they requested for some kind of special package. Okay, so that is completely discretionary. That is completely discretionary whether the center should provide it or not. Okay, so there are certain constitutional provisions under which center definitely helps some states, but some other states which do not enjoy some special category states, they are provided discretionary special packages for socio-economic development of the people. Okay, so that is special package. So what is basically why do we need special packages? Okay, what is the need for providing special packages to the different states? क्या जरूरत क्यों जरूरत है? Okay. So one important aspect is balancing the fiscal deficit of the state. That is the one aspect. Most of the times, the states do not are not able to generate significant amount of revenue because they do not have significant economic activities. We have studied regional disparities. So in regional disparity, we have seen northeastern states, then eastern part of India. They aren't that much economically developed. So basically, they don't have significant amount of revenue resources to carry out their socio-economic development activities. So as a result of which they face fiscal deficit challenge. So to overcome those fiscal deficit challenge, there is need of special packages to some state. Then there are some fiscal shocks as well. Okay, states suffer from some or the other kind of fiscal shocks because of different natural activities as well. Natural activities like disasters. Okay, we know the eastern part of India, it is highly vulnerable for cyclonic activities. Okay, if you talk about the northern parts of India, that is highly vulnerable to earthquake. ठीक है, हिमालयन बेल्ट में पूरा earthquake prone zone है. So there the states might suffer from fiscal shocks. ठीक है, then if you talk about some northeastern states, they are under frequent floods. ठीक है, so there are frequent floods in northern plains of India. So fiscal shocks हो जाते हैं, their agricultural activities get hampered, and agriculture being the prime source of income over there, so entire most of the people they suffer. So most of the time you will find that कि किसी भी टाइप का अगर कोई डिजास्टर हो जाता है, लेट्स से फ्लड्स हो, ड्रॉट्स हो, अर्थक्वेक हो, साइक्लोन्स हो, so it causes lot of infrastructural damage, and as the result of which the states demand some or the other kind of fiscal package. ठीक है, so yes, हाँ, yeah, exactly.
That is also the one aspect. Okay, political influence. Recently, you would have seen Bihar and Andhra Pradesh has received special treatment with respect to financial development. It is just because those two states were supporting in the formation of the NDA government at the central level. Okay, so for that purpose as well, we need special package. Then we need special package for human development and all. So ये सारे एस्पेक्ट्स है. ठीक है. To build good infrastructure, provide relief in natural disasters. So all these aspects for which we need to give fiscal package or special package to the state. अभी इसका implication क्या है? थोड़ा सा सोच के बताना. Implications on both aspects. The states which receive the fiscal package, उनके लिए क्या implications होगा, and उससे पहले if the central government is providing fiscal package, what things or what issues or what challenges it might face. सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या क्या चैलेंजेस आएगी. ठीक है. Exactly. So the expenditure of the central government increases that may put the central government itself into fiscal deficit. We all know that the central government has made a criteria that the fiscal deficit should be in the range of somewhere around 2.5 to 3.5 के आसपास, which is good enough for the healthy economy. But India has consistently breached its fiscal deficit target. ठीक है. Now it is somewhere around 5%. So which is very high. So if the central government is providing special packages to some specific states, as in this year, then definitely the central government will face fiscal deficit issue. It will face fiscal deficit issue. Okay? So it will further increase the burden of financial needs on all people of India, on all the citizens of India. ठीक है. Obviously बात है, किससे वसूलेंगे? आप लोगों से, हम लोगों से. ठीक है. पॉपकॉर्न पे भी टैक्स लगा है. ठीक है. कैरामल पॉपकॉर्न पे भी 18% जीएसटी. ऑब्वियसली बात है, इफ द गवर्नमेंट इज फेसिंग फिस्कल डेफिसिट, देन डेफिनेटली इट विल पुट अ बर्डन ऑन द सिटीजंस और ऑन द पीपल रिसाइडिंग इन द कंट्री. देन द नेक्स्ट इम्पैक्ट इज द गवर्नेंस इशू. दैट इज गवर्नेंस इशू. स्पेशल पैकेज मिल गया. ठीक है. So are the states which have received special packages, are they utilizing those funds for the specific needs of the people? That becomes a challenging thing. ठीक है. तो वहां पे गवर्नेंस इश्यूज बहुत सारे आते हैं. ऐसा नहीं कि स्पेशल पैकेजेस मिला है किसके लिए, पॉलिटिशियंस के लिए नहीं मिलता वो स्पेशल पैकेज. ठीक है. वो स्पेशल पैकेज ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मिलता है, बट इट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल. सो वी नीड टू एंश्योर there is proper governance for the development of the people. ठीक है. So there are governance issue. Then next issue or next implication is the dependency. If some states are consistently dependent on central government for special package, then they won't take any efforts to generate revenue in their own state. For example, most of the northeastern states, you will find them, they are always dependent. They are always dependent on the central government for special packages. I think in some states of northeast, there is no income tax on the people. ठीक है. मैं किसी स्पेसिफिक स्टेट के लिए नहीं बोलना चाहूंगा, बट देयर इज नो इनकम टैक्स ऑन द पीपल हार्डली पे इनकम टैक्स. देयर इज नो check on the people whether they are actually paying the tax or not. ठीक है. One of my friend, he is posted in XYZ district. He is the sole taxpayer in that entire district. ठीक है. वो अकेला ही टैक्स भरता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, वो अकेला ही टैक्स भरने वाला इंसान. ठीक है. तो आप सोच सकते हो, वन डिस्ट्रिक्ट इज जनरेटिंग XYZ, उसके ऊपर जो भी इनकम टैक्स 2.5-3 लाख का इनकम टैक्स जो भी भरता है. सो ही इज द ओनली पर्सन पेइंग इनकम टैक्स इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट. सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितना लेवल का वहां पे रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो सकता है. ठीक है. सो दे विल बिकम ऑलवेज दे विल रिमेन डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट फंड्स. ओके. सो किसी को भी आप पैसा देते हो तो वो क्या हो जाता है, डिपेंडेंसी जनरेट हो जाती है. ठीक है. यू पीपल आर नाउ डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स फॉर स्पेशल पैकेज. ठीक है. सो वही है. देन नेक्स्ट इम्प्लीकेशन इज द फेडरल इश्यूज. ठीक है. नाउ यू नो Andhra Pradesh and Bihar, these states have received special package. Obviously, there will be some other states. Odisha bhi, it is also lacking in development. ठीक है. There is Jharkhand as well, which is lacking in development.
So why Jharkhand should not receive special package? Just because there is some other party government over there. ठीक है. So as a result of which this leads to federal issues in the nation. Some specific states are favored by the central government for providing special packages, and some states are completely neglected. So this will further lead to regional disparity in the nation. We all know entire northeastern states and the Himalayan states, Uttarakhand, Himachal Pradesh, they have a special category. They are special category states. ठीक है, दे आर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, उनको स्पेशल फंड्स मिलता है. ठीक है, फाइनेंस कमीशन खुद एक फॉर्मूला बनाता है डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट्स. सो दे रिसीव गुड अमाउंट ऑफ फंड्स, बट दे हैव बिकम कंप्लीटली कंसिस्टेंटली डिपेंडेंट ऑन द सेंटर. ठीक है, डिस्पाइट सो मेनी एफर्ट्स उनको पैसा मिलता ही रहता है, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू generate a significant amount of revenue on by themselves. You people might would have seen one reel which is consistently being shared. If Maharashtra government is providing or generating a revenue of rupees 100, in return it is getting only 107 rupees from the central government. ऐसा कुछ तो है. ठीक है. Whereas some northeastern states, they are receiving, if they are contributing 100 rupees to the central government, they are receiving thousands of rupees in return. ठीक है, thousands of rupees in return. So here it generates some federal issues. Obviously, after some point of time, then Maharashtra people they will be like, हम क्यों इतना tax pay करें? ठीक है. So federal issues not just by the people but by the politicians, सबके बीच में कहासुनी हो सकती है. तो इसीलिए इससे क्या हो सकता है, फेडरल इश्यूज के साथ साथ सोशल अनरेस्ट भी हो सकता है. ठीक है, देयर माइट बी अकरेंस ऑफ सोशल अनरेस्ट. ठीक है, people will start revolting, they will start indulging in tax avoidance activities and all. ठीक है, तो ये सारे इश्यूज हो सकते हैं. सो इसीलिए अभी इसका सोल्यूशन क्या है, वे फॉरवर्ड क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? Exactly. There should be some fixed criteria on the basis of which the central government should provide fiscal packages to the state. ठीक है. As for example, special category state के लिए fixed criteria has been made by the Finance Commission. So for other states as well, it should not be in ad hoc manner. ठीक है कि हाँ इसने इलेक्शन में मुझे सपोर्ट किया तो उसको हम स्पेशल पैकेज दे देते. It should not be done in such way. There should be proper objective criteria based on the socio-economic factor, based on the environmental factors. ठीक है. There should be proper study, there should be proper analysis with respect to devolution or giving special packages to some other states. ठीक है. So एक specific ये होना चाहिए. Second is, even in case if you are providing special package, अगर आप स्पेशल पैकेज देते भी हो, अच्छी बात है, चलो आप स्पेशल पैकेज दे रहे हो, there should be proper accountability and proper governance with respect to management of those special package. ठीक है, there should be proper governance with respect to the management of those particular special package. ऐसा नहीं कि डिस्क्रिशनरी तौर पे आपने दिया है तो डिस्क्रिशनरी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड होना चाहिए. ठीक है. So there should be proper governance with respect to utilization of that particular special package. Then the states which are receiving the special packages, they should make a customized development plans. ठीक है, they can make a customized development plan. Center itself can take the initiative by creating some special agencies that will look into the utilization of special packages and development plan in those states. ठीक है. लेट्स से कि बिहार के लिए स्पेशल पैकेज दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हाँ आप इस जगह पे इसको यूटिलाइज करो. ठीक है, ये इनिशिएटिव आप यूज कर सकते हो. देयर इज वन इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज, आपने शायद सुना होगा, गति शक्ति प्लान सुना है, गति शक्ति. ठीक है, तो गति शक्ति का हेल्प करके द गवर्नमेंट कैन टेल द स्टेट्स कि आप यहाँ पे उसका फंड का यूटिलाइजेशन कर सकते हो. ठीक है. गति शक्ति पता है ना कैसा है? इट इज अ मास्टर प्लान, एक डिजिटल पूरा एक एआई बेस्ड तरीके से उसको ऐसा बनाया गया है. लेट्स से फॉर एग्जांपल आप लोग गूगल मैप इस्तेमाल करते हो. ठीक है, सो आपको एक पोजीशन से दूसरे प्लेस पे अगर जाना है तो आप दो जगह का इनपुट बस डाल देते हो, योर लोकेशन एंड द डेस्टिनेशन प्लेस. इमीडिएटली गूगल मैप आपको बेस्ट लुक ट्रैक दिखाता है कि हाउ यू कैन रीच टू दैट डेस्टिनेशन इन द क्विकेस्ट वे. ठीक है, फास्टेस्ट वे.
तो वो दिखा देता है गूगल मैप। तो उसी तरीके से इफ फॉर गवर्नमेंट इफ इट वांट्स टू डेवलप लेट्स से एक्सप्रेस वे फ्रॉम पुणे टू लेट्स से बेंगलुरु, तो दे जस्ट हैव टू पुट द इनपुट्स, और वो मास्टर प्लान क्या करता है, पूरा पूरा ट्रैक जनरेट करता है कि विच विल बी द बेस्ट पॉसिबल वे दे कैन कंप्लीट दिस एंटायर प्रोजेक्ट। ठीक है, कौन से ऑब्स्टैकल्स बीच में आएंगे, कहाँ पे टनल्स कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, कहाँ पे आपको ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, कहाँ पे रिवर आ रहा है, नाला आ रहा है, ठीक है, किस किस मिनिस्ट्री से क्लियरेंस लेना पड़ेगा, कितना फॉरेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, तो पूरा का पूरा एक मास्टर प्लान वो कंप्लीटली जनरेट कर देता है। सो विद द हेल्प ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सच गति शक्ति प्लान, the central government can ask the state to undertake special initiative with respect to special packages। ठीक है, सो फिर उसके बाद उसका मॉनिटरिंग वगैरह कर सकते हैं, एंड देयर शुड बी डिसेंट्रलाइजेशन एज वेल। ठीक है, तो गति शक्ति प्लान एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उसी तरीके से आप डिस्ट्रिक्ट को भी, स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट को भी बता सकते हो। द गवर्नमेंट कैन टेक द हेल्प ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट बोल सकता है कि दीज आर द स्पेसिफिक स्टेट्स विच आर लैकिंग इन सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, तो आप आपका स्पेशल पैकेज आप वहां पे इस्तेमाल करो। ठीक है, सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल पैकेजेस। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है? Yeah, exactly. The amount that is provided under special package, it is also discretionary. ठीक है, that is also discretionary. No, no, there's no such regulatory measures. ठीक है, there's no regulatory measures. ठीक है, I think एक article है which talks about additional grant, I think 282, हाँ, additional grant under article 282 which falls under miscellaneous financial provisions। ठीक है, मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजन, तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दिखा के आप कितना भी वहां पे स्पेशल पैकेज दे सकते हैं, कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है। ठीक है, तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल पैकेज। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख लेना, नोट्स आई शेयर विद यू पीपल। स्पेशल पैकेजेस, स्पेशल पैकेजेस आर often criticized, special packages are often criticized for being politically motivated. Special packages are often criticized for being politically motivated rather than rather than need based, rather than need based, full stop. Examine the statements with examples, examine the statements with example। ठीक है, so this is question। Yeah, you should write political, you can write, no issues in that। ठीक है, you can write because it has specifically said criticized, criticized for being politically motivated। ठीक है, बिंदास लिखो, कोई टेंशन नहीं। यूपीएससी और फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने। ठीक है, सो स्पेशल पैकेजेस एक ही होलिस्टिक आर्टिकल है, इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली वॉट एवर कंटेंट, लिमिटेड कंटेंट दैट यू हैव, यू विल बी इजीली एबल टू राइट इन 150 to 250 वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट एक इंडिविजुअल आर्टिकल है वैसे। ठीक है, ये थीम बेस्ड नहीं है, ये वैसे होलिस्टिक वे में कहीं पूछा नहीं जा सकता, बट उसका एक इम्प्लीकेशन जो है दैट इज इट्स क्वाइट हाई। ठीक है, सो वर्ल्ड बैंक हैज कम अप with one new index, that is Be Ready Index। ठीक है, वर्ल्ड बैंक has come up with new index, that is Be Ready Index। ठीक है, there are different institutions across the world, जैसे कि हमारे यहाँ पे नीति आयोग है, तो वो क्या करता है, हर एक चीजों के लिए रैंकिंग देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लीन सिटीज इन इंडिया, तो क्लीन सिटीज की रैंकिंग वगैरह दी जाती है, इंदौर एज द क्लीनेस्ट सिटी इन द इंडिया। ठीक है, तो हर एक चीज का वो क्या करते हैं, इंडेक्स बनाते हैं और रैंकिंग दे देते हैं।
ठीक है, कि कौन सा ये सिटी अच्छे परफॉर्म कर रही है, फिर यूनिवर्सिटीज के लिए रैंकिंग वगैरह होती है। तो उसी तरीके से डिफरेंट कंट्रीज की भी रैंकिंग होती है, दैट हाउ वेल दे आर प्रिपेयर्ड फॉर बिजनेस एक्टिविटीज इन द स्पेसिफिक कंट्री। सो बी रेडी इंडेक्स डेवलप्ड बाय वर्ल्ड बैंक, इट इज बिजनेस रेडी इंडेक्स, इट इज बिजनेस रेडी इंडेक्स। तो इसके अंडर वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है कि इट हैज कम अप विद सर्टेन क्राइटेरियाज। if XYZ countries has all good criteria with respect to investments, then that country is quite good in Be Ready Index. Before Be Ready Index, World Bank used to come up with ease of doing business. ठीक है, वर्ल्ड बैंक इससे पहले लेके आता था ease of doing business रिपोर्ट लेके आता था। ठीक है, बट ये जो रिपोर्ट था इसमें थोड़े से इश्यूज थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ease of doing business report, if it want to give the index of any particular country, whether it is favorable for doing business or not, for the private sector, for the government and all, तो वो क्या करते थे, it used to select specific important cities of a nation। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम इंडिया कहां से है, फ्रॉम इंडिया वर्ल्ड बैंक यूज टू सिलेक्ट ओनली फ्रॉम from India, World Bank used to select only two cities, that is Delhi and Mumbai. दिल्ली एंड मुंबई। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बनाना था इंडिया का, तो वो क्या करेगा, दिल्ली एंड मुंबई में व्हाट आर द लॉज दैट आर फेवरेबल फॉर डूइंग बिजनेस इन इंडिया, इट इज टू चेक ओनली इन दिल्ली एंड मुंबई। ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह हो जाता है बिटवीन एनी कंपनी एंड द गवर्नमेंट, ठीक है, टैक्स से रिलेटेड वगैरह या फिर कोई अदर केस हो जाता है, सो हाउ दिल्ली एंड मुंबई सिटीज कोर्ट्स आर एबल टू रिजॉल्व दोज issues in a fastest way, if they are able to resolve in a fastest way, तो definitely India का ranking अच्छा है। if they are able to provide you permit for setting up business in a fastest way, then definitely India का ease of doing business अच्छा है। so India started realizing this, so what India did, India then started focusing only on these cities, the government started focusing on these two cities। ठीक है, तो उन्होंने इंश्योर करना स्टार्ट किया कि जो भी कोई बिजनेस सेटअप करना चाहता है दिल्ली और मुंबई में, उनको जल्द से जल्द क्लियरेंसेस मिलना चाहिए। ठीक है, कोई डिस्प्यूट अगर हो जाता है तो उनका जल्द से जल्द डिस्प्यूट सॉल्व होना चाहिए। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इंडिया स्टार्टेड राइजिंग इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ड्रास्टिकली। ठीक है, ऑब्वियस सी बात थी, ये इंडिया को ध्यान में आया, सारे कंट्रीज को ध्यान में आया। बट बिफोर दिस व्हाट वर्ल्ड बैंक यूज्ड टू डू, कि ये दूसरे कंट्रीज में सिर्फ ऐसे ही करता था, वहां पे भी दो तीन स्पेसिफिक सिटीज होती थी, लेट्स से यूएसए का सिर्फ न्यूयॉर्क में चेक करेगा, अगर न्यूयॉर्क में अच्छा है तो डेफिनेटली पूरे कंट्री का अच्छा है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वेस्टर्न कंट्रीज वर हाईली डूइंग क्वाइट गुड इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो हमेशा आगे ही रहते थे। बट धीरे धीरे इंडिया को ध्यान में आया, चाइना को भी ध्यान में आया, all started rising, all developing nations started doing better। ठीक है, तो इमीडिएटली वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, 2021 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकालना ही बंद कर दिया। ठीक है, उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकालना बंद कर दिया। तो अभी वो नया लेके आए, दैट इज बी रेडी इंडेक्स। बट अभी इसमें भी एक दिक्कत है, इसमें व्हाट दे डिड इज दैट इनिशियली दे हैव सिलेक्टेड ओनली 50 कंट्रीज जिसका वो रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, बस 50 कंट्रीज का वो रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, फॉर नेक्स्ट 3 ईयर 24 25 26 दे आर गोइंग टू प्रिपेयर इंडेक्स फॉर ओनली 50 कंट्रीज, और इसमें इंडिया नहीं है। दे हैव एक्सक्लूडेड इंडिया फ्रॉम दिस पर्टिकुलर 50 कंट्रीज। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन परचेसिंग पावर पैरिटी वर्ल्ड में, और दे हैव एक्सक्लूडेड इंडिया फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बी रेडी इंडेक्स थिंग। ठीक है, सो आप सोच सकते हो क्या इंटेंशन होगा इन लोगों का। वेस्टर्न कंट्रीज है, नेवर वांट इंडिया एंड चाइना टू राइज। ठीक है, बट इसका फिर भी हमें सिग्निफिकेंस है। ठीक है, बट स्टिल वी हैव सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले बी रेडी इंडेक्स, व्हाट इज बी रेडी इंडेक्स? What is Be Ready Index? It is basically a new data collection and analysis report of World Bank in which
in which it assesses the business and investment climate worldwide. ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट वर्ल्ड वाइड, तो बिजनेसेस को कितना आसानी से क्लियरेंस वगैरह मिलता है, कितने आसानी से, वही चीजें करने वाले हैं, बट ये वर्ल्ड वाइड होगा, स्पेसिफिक सिटीज के लिए नहीं होगा। ठीक है, दे विल टॉक अबाउट डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ नेशन। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, डेटा कलेक्शन में काफी टाइम वगैरह लग जाएगा, बट स्टिल ये स्पेसिफिक सिटीज के लिए नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट बिजनेस रेडी इंडेक्स। बट अभी इसका हमें सिग्निफिकेंस भले ही इंडिया नहीं है, बट स्टिल इट हैज सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। इट हैज सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, तो क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है इंडिया के लिए? This index, it has certain pillars, it has certain topics on the basis of which it is going to rank different countries. ठीक है, this particular business ready index, it has certain topics, certain pillars on the basis of which, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है आपके कंट्री में, आप एनवायरनमेंट का ध्यान रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, ठीक है, क्लियरेंसेस का अगेन कितना फास्ट है, रेगुलेटरी मेजर्स, लेबर लॉज, आर यू प्रोटेक्टिंग लेबर राइट्स और नॉट। ठीक है, तो यही सारे क्राइटेरिया जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में थे, उसी टाइप के कुछ क्राइटेरिया इसमें होने वाले, बट वो ऑन रीजनल लेवल पे, वर्ल्ड वाइड लेवल पे होने वाला है। ठीक है, सो व्हाट इंडिया कैन डू थ्रू दिस इज दैट वी नो द क्राइटेरिया, अभी हम एक्सक्लूडेड है, बट वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दीज थिंग्स। ठीक है, वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दीज थिंग्स। तो इससे क्या हो जाएगा कि भले अभी 2026 तक हम इसमें इंक्लूडेड नहीं, बट 2026 के बाद डेफिनेटली उनको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उनको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। सो व्हाट वी कैन अश्योर इज दैट बाय नोइंग द क्राइटेरिया एंड बीइंग रेडी, ठीक है, उन्होंने बिजनेस रेडी बनाया, हम पहले रेडी रह के we can develop those regulatory measures in our nation, and as a result of which that can help our economy and ultimately boost the competitiveness among our products. ठीक है, so it will improve the business environment to attract foreign investment in India. ठीक है, so if we are ready for implementing these criteria, these pillars, then it will improve competitiveness in India. It will help in attracting investment and foreign direct investment in India. ठीक है, then it will support our e-commerce as well. ठीक है, it will support our e-commerce as well. We will have prior informed knowledge about the policies that we need to implement. ठीक है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो कैसे करना है, लॉजिस्टिक सेक्टर को डेवलप करना है, कैसे करना है, लेबर लॉस को डेवलप करना है, ठीक है, कैसे करना है, इसके बारे में हम पहले से ही रेडी रह सकते हैं। ठीक है, सो वी विल हैव इन्फॉर्म्ड पॉलिसी that will help us to overcome the business challenges in India. We will have informed policy that will help us to overcome business challenges in India. Then, as we are in the new age technology, ठीक है, we are talking about industrial revolution 4.1, so definitely the businesses that we need to develop, it should have technological aspect as well, so it will help in innovation in India, technological innovation in India, whatever the business policies that we will develop, जैसे कि for example गति शक्ति इतना इनोवेटिव वे में इनोवेशन के तौर पे उसको यूज करके बनाया गया है, तो उसी तरीके से अलग अलग बिजनेसेस के लिए हम इनोवेशन डेवलप हो सकता है। ठीक है, नाउ एज आई सेड इट इज नॉट फोकसिंग ऑन जस्ट दिल्ली एंड मुंबई। ठीक है, तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट दे वोंट फोकस ओनली ऑन दिल्ली एंड मुंबई, वी विल आल्सो टॉक अबाउट अदर रीजन्स ऑफ इंडिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल भुवनेश्वर हुआ, विशाखापट्टनम हुआ। ठीक है, वी कैन ensure development of those regions as well। ठीक है, हम उन regions का भी फोकस कर सकते हैं। लेट्स से ये बिजनेस रेडी इंडेक्स ने वर्ल्ड बैंक वालों ने इंडिया को इंक्लूड कर दिया, और उन्होंने 2028 में आकर उन्होंने चेक किया विशाखापट्टनम में कितना है क्या। ठीक है, सो वी कैन इंश्योर कि चलो वहां पे अगर कम है तो वी कैन इंश्योर डेवलपमेंट ओवर देयर एज वेल। सो इट विल प्रमोट रीजनल डेवलपमेंट इन इंडिया, इट विल प्रमोट इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में रीजनल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट होने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, देन इट विल ऑल्सो प्रमोट
ट्रांसपेरेंसी इन शेयरिंग ऑफ डेटा, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इन शेयरिंग ऑफ डेटा। जैसे कि फॉर एग्जांपल नाउ लेट्स से वर्ल्ड बैंक ने कौन से सिटी सिलेक्ट करेंगे वो इंडिया के, डेफिनेटली दे हैव टू बी ट्रांसपेरेंट इन देयर वॉट एवर इंडेक्स, वॉट एवर रैंकिंग दे आर गिविंग टू इंडिया, ठीक है, बिकॉज दे कैन नॉट ब्लफ नाउ कि भाई तुम्हारे यहाँ पे दिल्ली और मुंबई में इतना है एंड ऑल, वॉट एवर सिटीज दैट दे विल सिलेक्ट, डेफिनेटली वी कैन शेयर दो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विद देम, ठीक है। सो दैट विल बी द केस विद रिस्पेक्ट टू significance of this index for India. ठीक है, again I'll just repeat those significances. First is it will boost competitiveness in India. It will help in attracting foreign direct investment in India. It will support innovation in India. It will promote inclusive development in India. It will help in lowering the regional disparity in India. ठीक है, सो ये सारे encourage innovation, promote inclusivity and it will also help in monitoring better way, ठीक है, गवर्नमेंट को अच्छे से पता चल जाएगा कि भाई कौन से एरियाज को मॉनिटर करना है, ठीक है, तो स्पेशल पैकेजेस अगर दिए हैं तो वो भी कैसे मॉनिटर करना है उसके लिए भी हमें फायदा हो जाएगा, ठीक है। बट इससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या है, स्टिल इंडिया हैज चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू दिस। क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? ओके, the central government will definitely try to interfere in the state governance. It will try to ensure that India has good ranking in the index, ठीक है, so we will we will move away from decentralization initiative, ठीक है, जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात हम करते हैं, लोकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उससे हम शायद थोड़ा सा हट सकते हैं, दैट इज वन चैलेंज। नेक्स्ट इज, so running after just one index, it might hamper our development initiatives to some other sectors as well. ठीक है, now it is a business ready index, so we will be focusing only on development of business. ठीक है, so it might hamper other sectors, that is social development. ठीक है, हेल्थ सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस हो सकते हैं, माइट हैम्पर, ठीक है, हो सकता है कि भाई एजुकेशन भी क्राइटेरिया अगर है तो डेफिनेटली इट विल हेल्प, बट इट माइट हैम्पर सम अदर सेक्टर्स, ठीक है। environment cost, see basically the challenge is data availability, ठीक है, we have good amount of data with respect to some metro cities, but what about some other cities, ठीक है, आप रायपुर की बात ले लो, तो रायपुर में क्या क्या चीजें डेवलप वहां पे हो रही है, देयर माइट बी लैक ऑफ डेटा, ठीक है, लोकल लेवल पे देयर माइट नॉट बी हैव बीन डिजिटलाइजेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन बहुत सी जगह पे अभी भी अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपको वहां पे किसी टाइप का डेवलपमेंट बिजनेस रेडी होके लैंड क्लियरेंस के लिए कितना टाइम लगता है एंड ऑल, वो अगर रिकॉर्ड आपके पास नहीं है तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक बोलेगा कि यार लैंड क्लियरेंसेस तो आपके यहाँ पे मिलते ही नहीं है, हमें यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करनी थी बट लैंड क्लियरेंस के लिए तुम्हारे यहाँ पे 5 5 6 6 साल लग रहे हैं, ठीक है, तो कौन सी सिटी में कितने जल्दी लैंड क्लियरेंस वगैरह हो जाता है, तो इससे रिलेटेड डेटा अवेलेबिलिटी शॉर्टेजेस हो सकता है, ठीक है, सो देर वी नीड टू हैव रिलायबल कलेक्शन ऑफ डेटा शुड बी देयर। देन सेकेंड थिंग इज देर माइट बी पॉलिसी रेजिस्टेंस, ठीक है, देर माइट बी पॉलिसी रेजिस्टेंस फ्रॉम द लोकल पीपल, ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि वी आर मूविंग अवे फ्रॉम डिसेंट्रलाइजेशन, ओके, नाउ लेट्स से कि आपने सिलेक्ट कर दिया रायपुर, रायपुर में आपको बिजनेस फ्रेंडली वगैरह बनाना है, बट वहां का मेयर बोलता है कि नहीं यार हमें तो लोकल लोगों का एनवायरमेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, सो वी विल फोकस मोर ऑन एनवायरमेंटल पॉलिसीज, एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज एंड नॉट बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज, so definitely there will be resistance from the local people or the local governance for implementation of policies which are in line with the central government, ठीक है, सो पॉलिसी रेजिस्टेंस होने का चांसेस है। फिर उसके बाद लेट्स से इन केस इफ लोकल गवर्नमेंट डू एग्री, दे दे शुड हैव राइट अमाउंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, उनके पास प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, उनके पास प्रॉपर फंड्स होने चाहिए, दे नीड टू हैव फंड्स, they need to have resources, human resources, they need to have financial resources for implementing this business ready activities,
ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपको अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए तो फिर कितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सब चीजों का सप्लाई आपको इंश्योर करना पड़ेगा। ठीक है, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज का आपको सप्लाई इंश्योर करना पड़ेगा। ठीक है, देन अगेन वन मोर चैलेंज इज द मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। ठीक है, आपने रिसोर्सेज भी दे दिए, फंड्स भी दे दिए, बट उसको मॉनिटर एंड इवेल्यूशन करना भी एक चैलेंज बन जाएगा। पता चले मेयर ने सारा पैसा गायब कर दिया। ठीक है सर, यहाँ पे ब्रिज तो बना दिया था। ठीक है, बिहार में आप यू वुड हैव सीन सो मेनी ब्रिजेस कोलैप्स्ड। ठीक है, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन तो हुआ, बट क्वालिटी वाज नॉट देयर। ठीक है, सो मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन विल रिमेन अ चैलेंज। यस। हाँ, एक जगह खेत के बीच बीच में ब्रिज बना दिया और वो ब्रिज को इधर से भी एंडिंग नहीं है, इधर से कुछ है ही नहीं, मतलब बस बना दिया। वेयर डज इट लीड, नो वन नोस। ठीक है, एंड दिस इज नॉट जस्ट द इशू विद बिहार, बट देर आर मेनी अदर प्लेसेस। ठीक है, बस बिहार बदनाम है, हाईलाइट हो जाता है, बिहार का बस एक ही इशू है, वो हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, दिक्कत वो है कि वो हाईलाइट हो जाता है। देर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया वेयर सच काइंड्स ऑफ फ्रॉड टेक प्लेस। ठीक है, सो इससे ये चैलेंजेस है, तो इसी से रिलेटेड वे फॉरवर्ड। ठीक है, क्या क्या करना चाहिए हमें बिजनेस रेडी रहने के लिए, वही पॉइंट्स आने वाले हैं। यू विल फाइंड दैट means answer writing, UPSC means answer writing is very very easy. You just need to have right vocabulary. वही पॉइंट्स रिपीट होते हैं सब जगह पे, सब जगह पे वही पॉइंट्स रिपीट होते हैं। अभी इसमें क्या है, फंड्स का इस्तेमाल वगैरह करना है, ये वो करना है, तो क्या है, एक मेजर वर्ड आ जाता है गवर्नेंस। ठीक है, तो क्या करो, इम्प्रूव गवर्नेंस। वे फॉरवर्ड में क्या करो आप, इम्प्रूव गवर्नेंस। ठीक है, एनहेंस गवर्नेंस, क्रिएट एंड एनफोर्स इफेक्टिव पॉलिसीज। ठीक है, फिर सिंगल विंडो पॉलिसी शुड बी देयर। ठीक है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुड बी देयर। ठीक है, फिर उसके बाद आई हैव सेड देयर माइट बी पॉलिसी रेजिस्टेंस फ्रॉम लोकल पीपल, सो एंश्योर inclusiveness of all stakeholders should be included in the development process। ठीक है, उनको भी इंक्लूड करो। तो सिर्फ इट्स जस्ट अ प्ले ऑफ वोकेबलरी, जो चैलेंजेस लिखे उसको ऑपोजिट करना है, बस थोड़ा सा वोकेबलरी ये करना है। ठीक है, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है तो क्या करो, स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, थोड़ा वोकेबलरी प्ले करना है बस, कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, और एनी अदर काइंड ऑफ रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज भी हो सकता है, सर्विस रिसोर्सेज भी हो सकता है। ठीक है, प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी। ठीक है, इन्वॉल्व ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, सो means answer writing is very very easy, provided whatever you are reading or whatever notes that you are making, always ensure you are making it in organized manner। ठीक है, जो भी टॉपिक रहेगा, what that topic is, what is its significance, what are the challenges associated with it, what is the way forward, and इससे अलावा और थोड़े से बहुत आपको जो याद रखना होता है इसी से रिलेटेड, what are the initiatives that have been already been undertaken by the government। ठीक है, इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो जो इनिशिएटिव्स लिए गए थे वही इनिशिएटिव्स आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए थे, लेबर लॉज को कन्वर्ट करके। ठीक है, देयर वर इनिशियली 44 लेबर लॉज एट द सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल के तो पूछो मत। फिर उसको कम करके उन्होंने मर्ज विर्ज करके 29 लेबर लॉज पे लेके आए, एंड नाउ दे हैव कोडिफाइड इट इनटू 4 लेबर कोड्स। ठीक है, 4 लेबर कोड्स, तो क्लियरेंसेस जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, या फिर जो भी इंस्पेक्शन वगैरह करना है वो जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, सो और क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, लॉजिस्टिक सेक्टर को इंप्रूव किया गया है। ठीक है, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे क्या इनिशिएटिव लिया है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे बहुत बड़ा इनिशिएटिव एक लिया गया है। कौन सी बॉडी बनाई गई थी, चलो आज के लिए होमवर्क फिर आपको। ठीक है,
You have to have all this information when it comes to थोड़ा बहुत initiatives, दो तीन initiatives आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है, that you can utilize for enhancing value content of your answer, ठीक है, enhancing value of your answer, ठीक है, तभी जाके आपको जो एक्स्ट्रा 1 मार्क एक्स्ट्रा मिलना होता है, एक एक मार्क काउंट करता है, एक्स्ट्रा 1 मार्क जो मिलना होता है वो तभी जाके मिलता है। आपके आंसर में ऑब्जेक्टिविटी दिखनी चाहिए, इनिशिएटिव्स ये तो कोई भी बता देगा। इंडिया में बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, लोग बोलेंगे, कॉमन पीपल विल बी लाइक कि यार हाँ, गवर्नमेंट ने क्लियरेंसेस जल्दी देने चाहिए, ठीक है, बट उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी बहुत जरूरी है, ठीक है, क्या क्या इनिशिएटिव्स है, क्या क्या स्कीम्स है, ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, ठीक है, ये कलेक्टर को पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू टू थीम्स फॉर टुडे। नाउ सी हार्डली 4 साढ़े 4 महीने बचे प्रीलिम्स के लिए, तो फ्रॉम 6th ऑफ दिस आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इन दिस सेशन इटसेल्फ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद PYQ बेस्ड डिस्कशन, ठीक है। I'll be giving you questions on a daily basis, 25 questions on a daily basis. I am going to share a timetable with you people, ठीक है। You can modify the timetable as per your convenience, but if you are comfortable with this timetable, you can follow that particular timetable जिसमें एक specific topic होगा, उसी से topic से related there will be 25 PYQs. I'll be taking a mini test on it, ठीक है, आधे घंटे, 25 क्वेश्चन, आधे घंटे का टेस्ट होगा, और इमीडिएटली उसके ऊपर डिस्कशन होगा 1 घंटे का, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रीलिम्स के लिए 1.5 घंटा यूटिलाइज करने वाले हैं फ्रॉम 6th ऑफ जनवरी। तो उसका टाइम टेबल आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू टुडे इटसेल्फ, ठीक है। सो दैट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चेक फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 तारीख को मैं सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ये कर रहा हूँ, तो आप उससे रिलेटेड प्रिपेयर करके आ सकते हो, उसी से रिलेटेड PYQs ऑफ ऑल यूपीएससी एग्जाम, ठीक है, वो क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, और उसका मैं इमीडिएटली डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूँ, ठीक है। बिकॉज व्हाट आई थिंक इज दैट ये चीजें मैंने एक्चुअल में कंटिन्यू करनी चाहिए थी, एंड दिस थिंग्स आई शुड हैव स्टार्टेड वे टू अर्ली, बट मेरा यहाँ पे मैं अपॉइंटी यहाँ पे क्या कहते हैं, जॉब भी मुझे यहाँ पे 2 महीने पहले ही हुआ, ठीक है। बट कंसिडरिंग प्रीलिम्स बीइंग क्वाइट इम्पोर्टेंट, सो इस इनिशिएटिव को हम बीच बीच में कवर अप करेंगे, बट वी विल फोकस मोर ऑन प्रीलिम्स ना, ठीक है, ठीक, चलेगा। सो आपके बाकी फ्रेंड्स को भी बता देना, ठीक है। 25 क्वेश्चंस एवरी डे होगा, और उसके ऊपर इमीडिएटली हम डिस्कशन करने वाले हैं, एंड व्हाट आई वांट इज दैट यू पीपल शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड विद रिस्पेक्ट टू दैट टॉपिक। आप टाइम टेबल देख लेना, यू विल फाइंड दैट आपका ये सारा का सारा 24th ऑफ मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा सारा प्रीलिम्स, ठीक है। स्टिल यू विल हैव 2 मंथ्स, ठीक है, 2 मंथ्स आपको फिर भी टाइम दिया जाएगा कि आप आपका खुद से प्रिपरेशन कर सको, बट बिफोर दैट आपको आंसर स्ट्रक्चरिंग में कोई दिक्कत है अभी भी, नोट्स मेकिंग में कोई दिक्कत है, आंसर स्ट्रक्चरिंग, बट यू हैवंट शोड मी योर आंसर्स, हाँ, यू शुड बी रेगुलर इन आंसर राइटिंग, इफ यू आर रेगुलर इन आंसर राइटिंग, ही इज राइटिंग आंसर्स ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है, सो आई एम प्रिटी श्योर कि उसका आंसर स्ट्रक्चरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंटेंट ही हैज बीन इम्प्रूविंग ऑन अ डेली बेसिस, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अभी तक जितना 1 महीने में मैंने जितना आपके साथ कवर किया था, इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप आके मुझे एटलीस्ट दिखाओ, एवरी डे आई आस्क कि आंसर लिखा है क्या। अभी मैं आपका हाथ पकड़ के तो नहीं लिखवा सकता, ठीक है। इफ यू आर ब्रिंगिंग आंसर्स टू मी, देन एंड देन ओनली आई विल बी एबल टू शेयर फीडबैक, ठीक है, देन एंड देन ओनली आई विल बी एबल टू शेयर फीडबैक, वरना आंसर स्ट्रक्चरिंग में तो यही होना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आज का क्या क्वेश्चन है, special packages are often criticized for being politically motivated rather than need based, examine with statement with examples, ठीक है। सो स्पेशल पैकेजेस के बारे में लिख दो पहले 1-2 लाइन में, व्हाट आर स्पेशल पैकेजेस, ठीक है, वही चीज हमने कवर की है, व्हाट आर स्पेशल पैकेज, इसके बारे में बताया, नोट्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, उसी में से देख के लगा लिख लो व्हाट आर स्पेशल पैकेजेस, ठीक है। देन व्हाई आर स्पेशल पैकेजेस गिवन, नीड, व्हाई आर स्पेशल पैकेजेस गिवन, ठीक है, वो पूछा नहीं है उसमें, ठीक है, पूछा नहीं है। स्पेशल पैकेजेस आर ऑफन क्रिटिसाइज्ड रादर देन नीड बेस्ड,
नीड बेस्ड, तो थोड़ा सा नीड के मामले में लिख दो ब्रीफ में, बस सब हेडिंग दे देना नीड, ठीक है, एक दो पॉइंट्स, दो तीन पॉइंट्स लिख देना व्हाई इट इज नीडेड, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाई इज इट क्रिटिसाइज्ड, बिकॉज इट हैज सम नेगेटिव इम्प्लीकेशंस, ठीक है, व्हाई इट इज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज इट हैज सम नेगेटिव इम्प्लीकेशंस, तो नेगेटिव इम्प्लीकेशंस लिख दो एग्जांपल के साथ। हो गया आपका आंसर। यही तो है आंसर स्ट्रक्चरिंग। कंटेंट की आपके पास अभी कमी होगी, आई डेफिनेटली एग्री विद दैट, बट प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आप क्या करोगे, सिर्फ यही चीज है, कंटेंट ही तो रट्टा मारना है और लिखना है, ठीक है। बट ये सारी चीजें इट शुड बी डन राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन। ये अगर आपने फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन से अगर आपने किया होता, टुडे यू वुड हैव बीन मास्टर इन योर आंसर राइटिंग, ठीक है। बट यही दिक्कत है, प्रॉब्लम यही है कि लोग डिले करते हैं, पहले कंटेंट प्रिपेयर करेंगे फिर हम आंसर राइटिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। सो ये कोई बताता भी नहीं है कि फर्स्ट डे से कैसे करना है क्या करना है, बट आई हैव एंश्योर्ड इन लास्ट वन एंड हाफ मंथ कि आई हैव ट्राइड टू हेल्प यू टू द बेस्ट पॉसिबल वे, ठीक है। सो सम ऑफ यू आर डूइंग वेल, लोकित है, अजून तो एक होता सर, योर स्ट्रक्चरिंग इज क्वाइट गुड, ठीक है, बट कंटेंट के ऊपर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, नो नीड टू वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, आराम से करना है, इसीलिए यूपीएससी कहते हैं ना कि पहले 1.5 साल आप पूरा आपका बेस बना लो, ठीक है, फिर एक ही अटेम्प्ट देना है, पर अच्छे से देना है, ठीक है, ओके, चलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे एंड करते हैं, मैं टाइम टेबल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक, टाइम टेबल आप लोगों के साथ, ये आज के नोट शेयर कर रहा हूँ, टाइम टेबल शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। एंड 6 से हम यही चीजें डेली बेसिस पे करने वाले हैं, ठीक है। एटलीस्ट उसके लिए आई वांट कंसिस्टेंसी फ्रॉम योर साइड, ठीक है, आई वांट कंसिस्टेंसी फ्रॉम योर साइड,